بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو کی 8th کلاس کی بک میں سبق نمبر 18 میں آج ہم پڑھیں گے دریا کنارے چاندنی۔ یہ بہت ہی خوبصورت نظم ہے جس میں چاندنی کا ذکر کیا گیا ہے کہ دریا کے کنارے چاندنی کتنی خوبصورت اور بھلی لگتی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں دریا کے کنارے چاندنی کے منظر کو بیان کیا ہے۔ اس خوبصورت نظم کے شاعر کا نام ہے اختر شیرانی۔ الفاظ معنی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب ہم تشریح کریں گے، اور سب سے پہلے آپ کے ساتھ خلاصہ اور مرکزی خیال، پھر اس کے بعد ایکسرسائز اور لاسٹ میں امپورٹنٹ کوشچن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آپ نے ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی ان امپورٹنٹ کوشچنس کے لیے جو آپ کے پیپر میں آئیں گے، اور آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے کہ اس نظم کا کون سا بند ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی۔ تو سب سے پہلے خلاصہ شیئر کروں گی۔ خلاصہ ہے، اس نظم میں شاعر دریا کنارے چاندنی کے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاند کی چاندنی خاموش ہے اور ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ دریا کے کنارے جو درخت ہیں ان کی شاخیں بھی ساکن و ساکت اس منظر سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ رات کی تاریکی میں چاندنی کا دل فریب منظر فطرت کی عکاسی کر رہا ہے۔ آسمان پر ستاروں کا قافلہ انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، ازل سے رات آرام کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس وجہ سے رات کو ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے، ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ قدرتی مناظر کا حسن انسان کو اپنے سحر میں جکڑ کر اسے اس کائنات کے خالق یعنی خدائے بزرگ و برتر کی بڑائی کا قائل کر دیتا ہے اور اس پر ایمان کو مزید پختہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مرکزی خیال نوٹ کر لیں۔ چاندنی راتوں کا منظر بے حد حسین اور قابل دید ہوتا ہے۔ ہر چیز چاندنی کے نور اور روشنی میں نہائی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں زندگی کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں فطرت سے دوستی کرنی چاہیے۔ اب اشعار کی تشریح نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلا بند ہے، کیا چھا رہی ہے چاندنی، اٹھلا رہی ہے چاندنی، دریا کی ایک ایک لہر کو نہلا رہی ہے چاندنی، لہرا رہی ہے چاندنی۔ سب سے پہلا مشکل الفاظ ہے چاندنی، اس کا مطلب ہے چاند کی روشنی بارونق۔ اٹھلانا کا مطلب ہے شوخی انداز سے قدم رکھنا۔ لاسٹ ہے لہر، اس کا مطلب ہے موج اٹھنا، پانی کا وہ سلسلہ جو ہوا کی تحریک سے سطح آب پر نمودار ہوتا ہے۔ اس بند میں شاعر چاندنی کا منظر یوں بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی رات ڈلی چاندنی چھانے لگی، چاندنی ہر جانب لہرا اور اٹھلا رہی تھی۔ ایسے میں دریا کی ایک ایک لہر چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے دریا کے پانی میں لہر اٹھتی یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا چاندنی بھی اس لہر میں نہا رہی ہو۔ اس کے بعد بند نمبر 2 ہے، دریا کنارے دیکھنا، پانی میں تارے دیکھنا، تاروں کو دامن لیے کیا کیا نظارے دیکھنا، دکھلا رہی ہے چاندنی۔ دامن کا مطلب ہے آنچل، جھولی، گود، آغوش میں لینا۔ نظارے کا مطلب ہے نظارے کی جمع، دیدار کرنا۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ دریا کے کنارے بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، یہاں دیکھنا ایسا ہے جیسے تارے دیکھ رہے ہوں۔ یہ تارے پانی میں چاندنی کا عکس ہے۔ دریا تاروں کو اپنے دامن میں سمیٹے کیا دل فریب منظر نظارے لیے ہوتا ہے، یا چاندنی ہمیں کیا کیا نظارے دکھلا رہی ہے۔ اس کے بعد بند نمبر 3 ہے، ٹھنڈی ہوا خاموش ہے، اجلی فضا خاموش ہے، فضا ہے سارا جہاں، ہر ایک صدا خاموش ہے اور چھا رہی ہے چاندنی۔ اجلی کا مطلب ہے صاف، صدا کا مطلب ہے پکار، ندا چھا رہی ہے، اس کا مطلب ہے سایہ کر رہی ہے، پھیلا رہی ہے، وسعت دے رہی ہے۔ ستھری کا مطلب ہے آواز۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا بھی خاموش ہے اور چاندنی میں روشن اجلی فضا بھی خاموش ہے، سارا جہاں اس خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے، ہر آواز بھی خاموش ہے، ہر چیز چاندنی کے نور اور روشنی میں نہائی ہوئی ہے، ہر جانب چاندنی چھائی ہوئی ہے۔ بند نمبر 4 ہے، دیکھو سمے وہ دور کے خیمے کھڑے ہیں نور کے، دریا کے نیلی سطح پر کچھ پھول سے بلور کے برسا رہی ہے چاندنی۔ سمے کا مطلب ہے وقت، زمانہ، موسم۔ خیمے نور کے، اس کا مطلب ہے روشنی کے کالم، روشن علاقے۔ بلور کے پھول، اس کا مراد ہے روشنی کے کل دستے یا چمکتے اجلے مقامات۔ آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ چاندنی راتوں کا منظر بے حد حسین اور قابل دید ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دور سے دیکھے تو ایسے لگتا ہے کہ روشنی کے خیمے کھڑے ہیں، شام کے وقت ہر علاقے اور ہر جانب روشنی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ دریا کی نیلی سطح پر روشنی کے گلدستے رکھے ہوں، ہر طرف نور اور روشنی برس رہی ہے۔ غرض کہ چاندنی رات کا منظر بہت ہی سحر انگیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشچن نوٹ کر لینے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن ہے، دریا کی ایک ایک لہر کو نہلا رہی ہے چاندنی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دریا چاندنی کے نور سے روشن ہے اور یوں لگتا ہے کہ گویا وہ دریا چاندنی کے نور سے غسل کر رہا ہو۔ سوال نمبر 2 ہے، کیا پانی میں تارے ہوتے ہیں؟ اگر نہیں ہوتے تو شاعر نے پانی میں تارے دیکھنا کیوں کہا ہے؟ جواب ہے نہیں، پانی میں تارے نہیں ہوتے، شاعر کو پانی کے جھلملانے اور اس میں چاندنی کے عکس کے لہرانے کی وجہ سے تارے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، دور کے سمے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، دور کے سمے سے مراد دور کے منظر۔
नेक्स्ट क्वेश्चन है नूर के हमे से शायर की क्या मुराद है, तो इसका आंसर है नूर के हमे से शायर की मुराद रोशनी के कालम या रोशन इलाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलौर के फूल क्या होते हैं, शायर ने ये इस्लाह क्यों इस्तेमाल की है, तो इसका आंसर है बलौर के फूल से मुराद रोशनी के गुलदस्ते या चमकते उजले मकामात हैं। शायर ने ये इस्लाह इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि चांदनी रात की रोशनी हर तरफ फैली हुई होती थी और अंधेरे में चांदनी रात की रोशनी जब दरिया पर पड़ती तो यूं दिखाई देता जैसे रोशनी के गुलदस्ते पड़े हों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदनी रात की खुसूसियात बताएं। इसका आंसर है जैसे ही रात डली चांदनी रात छाने लगी, हर जानब चांदनी लहरा और उठला रही होती है, यूं लगता है हर शय चांदनी में नहाई हो। चांदनी रात में सारा जहान खामोश होता है, हर तरफ नूर ही नूर का समा होता है, करीब के इलाके हों या दूर के हर जगह रोशन होती है। दरिया के पानी पर यूं दिखाई देता है जैसे तारे उतर रहे हों, हर तरफ खामोशी का समा होता है और दूर के इलाके यूं दिखाई देते हैं गोया नूर के हैमे खड़े हों। उसके बाद आपने तफसीली सवालों के जवाब देने हैं। तफसीली सवाल नंबर 1 है कायनात में फैले हुए खूबसूरत फितरती मनाजर को अपने अल्फाज में बयान करें, तो आंसर है इंसान को रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से कुदरती मनाजर देखने को मिलते हैं, चाहे फजर के वक़्त सूरज के शफ़क़ पर उभरने के बाद आसमान पर छाई हल्की हल्की लाली हो या ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो बर्फ़ और बादलों में ढके हों। ऐसे मनाजर देखते ही बेख्तियार उस हाल की तारीफ़ करने को दिल चाहता है और इंसान सोचता है कि वो रब कितनी कुदरत रखता होगा जिसने सिर्फ कुन कहा और ये हसीन मंजर बन गए। आसमान कुदरती इलाही का इस एतबार से भी मज़र है कि वो निहायत बुलंद है, इसकी बुलंदी का सही इदराक इंसानी अक्ल शायद ना कर सके। इस नीलगो आसमान के नीचे बेशुमार कवाकब अल्लाह के हुक्म से गर्दिश कर रहे हैं। कुरे अर्ज़ पर इंसानी ज़िंदगी की बका और उसकी मरफ़क़त के पेश नज़र चाँद सूरज दो ऐसे अहम सियारे हैं जिनकी गर्दिश से लैलो नहार और साल के मौसमों की तब्दीली वाक़या होती है। सूरज और चाँद के अलावा इस आसमान दुनिया को अल्लाह ताला ने बेशुमार टिमटिमाते सितारों से मुज़य्यन कर दिया है, जो न सिर्फ आसमान दुनिया की जीनत है बल्कि वो रात की तारीकी में राह चलते मुसाफिर को रास्ता दिखाते हैं और सही सिमत मुतय्यन करने का फरीज़ा भी अंजाम देते हैं। इसके अलावा दरख्त, फूल, दरिया, समंदर, पहाड़, आबशारें सब खूबसूरत फितरती मनाजिर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की क्या अहमियत है, अगर ज़मीन से पानी ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, पेश गोई कीजिए। तो इसका जवाब है पानी कुदरत का एक बेशबहा अतिया है और इंसानी ज़िंदगी का अहम जुज़ है। हज़रात इंसान हिवान बल्कि नबातात के लिए भी पानी की अहमियत मुहताज वजाहत नहीं है। तंदुरुस्ती और सेहत की बका के लिए हवा के बाद पानी ज़रूरी है। इंसानी जिस्म की बनावट में पानी का बड़ा हिस्सा है। कुरान हकीम ने पानी के बगैर इंसानी ज़िंदगी को नामुमकिन करार दिया है। इरशाद बारी ताला है और हमने पानी से हर चीज़ को बनाया, गोया पानी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। पानी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जानवर और पौधे भी पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। पानी सिर्फ हमारे पीने के लिए ही नहीं बल्कि हर चीज़ में काम आता है। पानी पीने के साथ नहाने और कपड़े धोने के काम आता है। यही वजह है यहाँ तक कि जो चावल, गंदम, दाल हमारे खाने के लिए आते हैं, इसको भी पानी के ज़रिए उगाया जाता है। आज के इस दौर में पानी की बूंद बूंद को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आज के दौर में पानी की हिफाजत नहीं की गई तो हमारे बाद आने वाली नस्लों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। अगर हित्ता ज़मीन से पानी ख़त्म हो जाए तो ज़मीन पर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रहेगा। ज़मीन बंजर हो जाएगी, ज़मीन पर ज़िंदगी के आसार ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चमन का मंजर अपने अल्फाज में तहरीर करें, तो इसका आंसर है चमन में बहार के आमद है, हर तरफ फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। इतने फूल खिले हैं कि सेहने चमन भर गया है और फूलों की कसरत और रंगीनी सेहने चमन की खूबसूरती और बारिश का सबब बन गई है। इस दिलरुबा मंजर को देखकर बुलबुलें खुशी से चहक रही हैं और सारा चमन इनकी आवाज़ों से गूंज रहा है। चमन में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। सब्ज़ा शबनम में भीगकर ज़ुमुर्द का फर्श दिखाई देता है। हवा मस्ती में झूम झूम कर चल रही है और हर तरफ फूलों की खुशबू बिखर रही है। दरख्तों की शाखें खुश और शादमानी से हिल रही हैं। बहार के मौसम की वजह से डालियों पर फूल खिले हैं। ये रंगो बू के लिहाज से इस कदर खूबसूरत और मुअत्तर है कि इस मंजर से हर नाज़र मसहूर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है मतन के मुताबिक आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। सबसे पहला एमसीक्यूज है दरिया की एक तो इसका आंसर आप लगाएंगे लहर को। नेक्स्ट है तारों को दामन, नंबर 1 है मे लिए, नंबर 2 है पार लिए, नंबर 3 है मे डाले और नंबर 4 है मे पर रोए, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 मे लिए। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है ठंडी हवा, नंबर 1 है पुरजोश है, नंबर 2 है खामोश है, नंबर 3 है बेहोश है और नंबर 4 है मदहोश है, तो इसका सही आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 खामोश है। उसके बाद नेक्स्ट है खामोश है सारा, नंबर 1 है जहान, नंबर 2 है मकान, नंबर 3 है दरिया और नंबर 4 है जंगल, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 जहां। उसके बाद नेक्स्ट है देखो समय वो, नंबर 1 पास के, नंबर 2 आस पास के, नंबर 3 करीब के, नंबर 4 दूर के, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4
लास्ट है हमें खड़े हैं, नंबर 1 नूर के, नंबर 2 तूर के, नंबर 3 दूर के और नंबर 4 करीब के। तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 नूर के। इस तरह हमारे MCQs भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्ज है हद कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ आली जगहों में लिखें। आपने जो हद कशीदा किए हुए अल्फाज उनके मुतरादिफ लिखने हैं। सबसे पहला है बिल्ली के बाल बहुत नरमो, तो आगे आप लिखेंगे मुलायम है। उसके बाद बे वाला है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई नडर, नडर का आप लिखेंगे बहादुर, ठीक है। खाली जगह दूसरी में आपने लिखना है बहादुर आदमी थे। उसके बाद तीसरी खाली जगह है आजकल शहर में खौफ, तो आगे लिखेंगे खौफो हरास, ठीक है। आपने लिखना है हरास फैला हुआ है। उसके बाद सेकंड लास्ट है हमें मुफलिस, मुफलिस का मतलब होता है गरीब, तो दूसरी इसकी खाली जगह में लिखेंगे मुफलिस और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। लास्ट है सूरज की तपश और डैश से ज़मीन तपने लगी, तो तपश का होता है हरारत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ज़्यादा जुमले तहरीर करें तो उनके जुमले नोट कर लें। सबसे पहला जुमला है न्यारी, तो इसका आप जुमला लिखेंगे तमाम फूलों में गुलाब की खुशबू न्यारी होती है। उसके बाद दिलशाद है, उसका जुमला लिखेंगे बाग का सुहाना मंजर देखकर मेरा दिल शाद हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है बन, बारिश ना होने की वजह से बन में तमाम जानवर प्यासे थे। उसके बाद नेक्स्ट है लुभाते, इसका जुमला लिखेंगे गाँव के बेहद हसीन मंजर दिल को लुभाते हैं। और लास्ट है रवां, तो इसका जुमला लिखेंगे काफिला सुबह से अपनी मंजर की तरफ रवां है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, नज़म में मौजूद हम आवाज़ अल्फाज तहरीर करें, तो इनका आंसर भी नोट कर लें। आपने जो लफ्ज़ मैंने अंडरलाइन किए हैं आपने उनको हम आवाज़ अल्फाज बनाने ले हैं। सबसे पहला है इठला, तो उसका लिखेंगे निहला। उसके बाद है लहरा, तो उसका लिखेंगे दिखला। फिर है किनारे, तो इसका हम आवाज़ अल्फाज होगा तारे। उसके बाद नेक्स्ट है हवा, तो इसका लिखेंगे फ़ज़ा। सारा का लिखेंगे सदा। और लास्ट में आप लिखेंगे दूर, तो उसका हम आवाज़ अल्फाज आप लिखेंगे नूर। इस तरह आपने हम आवाज़ अल्फाज कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नज़म पढ़कर हुलासा तहरीर करें। तो हुलासा हम वीडियो के स्टार्टिंग में कर चुके हैं। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। और अब आपके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी, तो वो भी आप नोट कर लें। सबसे पहले आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। सबसे पहले MCQs है इठला रही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चांदनी। उसके बाद नेक्स्ट है पानी में तारे, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है उजली फ़ज़ा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी खामोश है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हर एक खामोश है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सदा। क्वेश्चन नंबर 5 है दरिया की सतह है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी इसका जिसका है नीली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है नूर के खड़े हैं, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी है में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है समय का मुतरादिफ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वक्त। क्वेश्चन नंबर 8 है दूर का मुतजाद है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 9 है इठला का हम आवाज़ लफ्ज़ है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी निहला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाला लफ्ज़ है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी बलोर। उसके बाद नेक्स्ट अशार पढ़कर आपने जवाब पर टिक लगाना है। क्या छा रही है चांदनी, इठला रही है चांदनी, दरिया की एक एक लहर को नहला रही है चांदनी, लहरा रही है चांदनी। इसका पहला MCQs है क्या छा रही है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी चांदनी। नेक्स्ट है डैश की एक एक लहर को, तो इसका आंसर लगाएंगे दरिया। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है नहला डैश चांदनी, तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन सी रही है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है चांद का मुतरादिफ है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी कमर। इठला का सही तलफ़्फ़ुज़ है, तो इसका आंसर है इठला। इसी के साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपके साथ शेयर करूंगी इस नज़म का बहुत ही इम्पोर्टेंट बंद जो पेपर में आपके आ सकता है। आपने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना, आपने इसको चॉइस पे भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये पहला बंद है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा, इसकी तशरीह भी ज़रूर याद कीजिएगा और आपने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की नज़म जिसका नाम था दरिया किनारे चांदनी हमारी कंप्लीट हो गई है। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।